इंडिया में ना मैगी और चाय के अलावा मैं किचन में भी नहीं घुसती थी। अब देखो फॉरेन कंट्री क्या क्या सिखा देती है यार। पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार रट्टा मार। डोंट, रट्टा मत मार। Cool, I'm all set. When are the placements starting? Placements? Don't you know there's no concept of placements in foreign universities? What? How am I supposed to get a job here, dude? What is up people? I am Mayuri और इस वीडियो में I am going to share those top 5 things जो हम इंडियंस को उड़ने से पहले, बेसिकली स्टडी अब्रॉड जाने से पहले कोई बताता ही नहीं है यार। These are based on my experiences. Let's go. Number 1, आपकी नौकरी आपके हवाले। So guys, abroad में ना there's no concept of placements. You know, one of the most frequently asked questions that I get from students is, Mayuri, how are the placements in those universities? What percentage of students actually get placed and what is the average package like? All of these are valid questions. But for Indian universities, ये सारा तो valid metric भी नहीं है for foreign universities. You know why? There is no concept of in-campus placements in all the foreign universities. So here's a $1 million question. How do you get through the job search process if the university is not even providing with placements? You know what? It's pretty much an independent process because foreign universities का मानना होता है कि during the course time they equip you with all the subject knowledge and the skills that you need to go through the job search process. After that's done, it's pretty much dependent on you how you leverage those skills in your job search strategy. Now, of course, all the foreign universities have their own career units and placement units who help you with your, CV making, mock interviews, arranging career fairs, providing you with networking opportunities and all of that. But at the end of the day, it's pretty much dependent on you, how you are grabbing those opportunities, going out there, being proactive, applying to those jobs and cracking those interviews. So here's a pro tip for you guys. तो अब placement वाला data तो available नहीं है, तो choose कैसे करोगे university? That you can do by a very important metric called employability ranking of a university. So global employability ranking of a university are those universities where the recruiters at the top companies think are best at prepping their students for the workplace. तो यहाँ पे ना 2 वेबसाइट ज़रूर चेक करना जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. Number 1 is Times Higher Education, that's THE. Number 2 QS Ranking. तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो यू कैन क्लियरली सी THE में ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2021. दीज आर द ग्लोबल रैंकिंग्स और कौन से कंट्री की यूनिवर्सिटी है वो भी मेंशन्ड है. एंड कमिंग टू QS रैंकिंग, यहाँ पे भी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी अगेंस्ट which country are those universities based in. Number 2, चतुरगिरी नहीं चलेगी. चमत्कार का मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे. I'll memorize it. Guys, मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊं. हमने अभी ये एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग की बात की ना, हम इसी लिस्ट में इंडियन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देखते हैं. लेट्स गो. अब मेरे सामने है टाइम्स हाई एजुकेशन का वेबसाइट. सो लेट्स चेक आउट फॉर इंडिया. वेयर इज इंडिया? Okay, 27th rank, IIT Delhi. Let's go more. Where's India? Where's India? Okay, there it is. 61th rank, Indian Institute of Science. And where is it? Indian Institute of Technology, Bombay. So guys, आप देखोगे कि top 100 ranking में सिर्फ 3 Indian universities है. Isn't that shocking? And you know why? Everything jots down to employment versus employability. Employment का मतलब है getting a job, whereas employability मतलब having the right set of skills, attitude and attribute to excel in a role in any workplace. तो मुझे जनरलाइज नहीं करना है, बट मोस्टली ना इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान देती है, आपके मार्क्स पे, आपके ऑल इंडिया रैंक पे. बट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ना इट इज़ डिपेंडेंट ऑन हाउ इफेक्टिवली यू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स, हाउ यू कैन शो योर नेटवर्किंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, हाउ यू कैन बी प्रोएक्टिव एंड गो एंड गेट देयर.
showcase your hobbies, so it's not just about your marks. तो इसीलिए मैंने बोला सिर्फ चतुर मत बनो, बाहर ऐसे सक्सेस नहीं मिलेगी. You have to be an all-rounded person. Number 3, देसी नुस्खों को ना घर ही छोड़ आना. यार हम इंडियंस कितने ही जुगाड़ू होते हैं नहीं. एंड दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द फैक्ट कि हम अपने कॉलेज में कैसे एग्ज़ाम पास करते थे. रिमेंबर कि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होती थी और रात भर फुल हलचल, जेरोक्स सेंटर के आगे लाइन, नोट सर्कुलेट हो रही है, क्लास का टॉपर या क्लास की टॉपर रात भर में हमें कंसेप्ट समझा रहा है, और एंड यू नो सरप्राइजिंगली हम अच्छे से पास भी हो जाते थे. तो ये वाली गलती ना गलती से भी बाहर मत करना, बिकॉज नथिंग इज स्पून फेड देयर गाइज. सो गाइज सिर्फ पास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व करके अगर आप बाहर के एग्जाम्स को क्रैक करने का ट्राई कर रहे हो तो मत करना, बिकॉज द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द की देयर. आप सिर्फ एग्जाम्स नहीं देते हो, यू नीड टू बी वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ योर कोर्स वर्क, हाउ वेल आर यू परफॉर्मिंग इन प्रेजेंटेशंस, योर असाइनमेंट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकते हो बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लेजरिज्म, और उनके सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रांग होते हैं. सो यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द की. कितने बखूबी आप ये कंसेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हो in practical situations and in questions, that is something that is gauged here. The point is यहाँ पे last minute पढ़ाई का point नहीं है guys. अगर इतना invest करके आप जा ही रहे हो, might as well make the most of it. Really switch up your learning and studying style when you are in the foreign university. Number 4, रोटी, कपड़ा और मकान उर्फ लाइफस्टाइल डिफरेंसेस. अगर आप इंडियन हॉस्टल्स में रहे हो तो आपको इनके हाल तो बखूबी पता होंगे. समथिंग वेरी सिमिलर टू व्हाट आवर अनन्या दीदी ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड. और ये क्या? सांभर. ऐसा कोई खा सकता है ये? नहीं. तो बेसिकली गाइज मानो ना मानो हम ना इंडिया में बहुत प्रिविलेज्ड लाइफ जीते हैं, क्योंकि यार हॉस्टल में मेस फैसिलिटी होती है, कैंटीन फैसिलिटी होती है, हमारे पास दुनिया भर के ऐप्स है, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, अर्बन क्लैप हो गया. बट अगर आप बाहर देखो ना बहुत डिफरेंट है यार, क्योंकि एक खाना ऑर्डर करने में इतना कॉस्टली हो जाता है. आई रिमेंबर एक टाइम का मील नॉर्मल रोटी सब्जी 10 पाउंड से नीचे नहीं आता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1000 रुपीज़. उसमें भी वो रोटी को बोलते हैं फ्लैट ब्रेड, और मसाले डालने में तो इतनी कंजूसी की पूछो मत. सो द पॉइंट इज़ बाहर ये मेड कुक ये सब सिस्टम नहीं है, क्योंकि बहुत कॉस्टली है, तो सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ऑल्सो परस्यू पार्ट टाइम जॉब्स विच हेल्प देम इन देयर यू नो रोटी, कपड़ा एंड मकान. सो गाइज पॉइंट ये है कि बाहर ना आपको आपके पढ़ाई के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, एंड उसके साथ साथ आप इतने रियल लाइफ स्किल्स सीखते हो ना, लाइक टाइम मैनेजमेंट, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाउ टू प्रायोरिटाइज डिफरेंट टास्क इन योर लाइफ, जो दुनिया में ना कोई भी यूनिवर्सिटी या कोर्स आपको नहीं सिखा सकता है. आपको बस वो एक्सपीरियंस सिखा सकता है. एंड नंबर 5, आप ही हो आपका परिवार. गाइज मैं डराना नहीं चाहती, बट ऑनेस्टली ना एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ द फेज़ में आपको लोनली लगेगा, आपको होम सिक भी लगेगा, स्पेशली अगर इस फेज़ में अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो यार गाइस अपने मम्मी के हाथ की खिचड़ी एंड यू नो वो झप्पियाँ इतनी याद आएगी, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के वो चाय वाली शाम याद आएगी, अपने सिबलिंग्स का चिक याद आएगा, अगर आपका कोई पार्टनर है तो उनके कडल्स याद आएंगे. गाइस ये ध्यान में रखना कि आप ही के जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ अकेले हैं, ब्रोक हैं, फैमिली से दूर है और बहुत मेहनत करके आए हैं. सो यू आर गोना इवेंचुअली मेक amazing friends that are for life. You're gonna have beautiful experience, but initially ये सब सोच के ना डरना मत. I remember जब मैं UK में गई थी, starting first day मुझे फीवर हो गया था 103 and I felt like यार मैं कहाँ आ गई हूँ, मेरे को कोई नहीं जानता है, मेरी फैमिली नहीं है. But trust me guys, I promise you it gets better eventually. And ये सारे experience जो आपको जो सिखाएगी ना, जब when you will be there managing yourself, you will look out for yourself, you will take care of yourself, वो सारा ना confidence आपको इतना आएगा कि कोई भी और life experiences आपको नहीं सिखा पाएंगी. So guys, these were the top 5 things which I experienced were so different when I was studying in Indian university as against when I was abroad. I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो please subscribe to my channel right there, and I'm gonna see you next time with a new video. Bye.